Now we are heading towards data flow based coverage criteria. When we were defining control flow based coverage criteria, we had control flow graph. From control flow graph, we identified paths. From paths, we identified path conditions. From path conditions, we identified or we sensitized those paths through appropriate data values, and then we arrived at test cases. सिमिलर सा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा, जहाँ पहले हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि पाथ क्या है. पाथ को डिफाइन करने के लिए हमें पाथ इन टर्म्स ऑफ, पहले पाथ था इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस. अब पाथ है इन टर्म्स ऑफ एनोटेशंस. एनोटेशंस कौन सी? डिफाइन, डी, सी एंड के. अब इनके साथ हमें पहले पाथ डिफाइन करना पड़ेगा. करते हैं. देख, data values are created at some point in the program, and def, we will use def, is a location where value of variable is stored into memory. Create. Use, हमने पहले u यूज किया था इसके लिए. Use is a location where value is accessed. Values are carried from defs to uses. अब देखिए, हमने सी यू को और पी यूज को फिलहाल फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी इसको एक इकट्ठा लेके चल रहे हैं. सो हम जा रहे हैं कि अगर एक वैल्यू डिफाइन हुई है तो अपने यूज तक उसका क्या बिहेवियर रहता है. डी यू पेयर, दैट इज डेफ यूज पेयर, इज अ पेयर ऑफ लोकेशंस वेयर एल आई एल जे. अब लोकेशन एल आई इज फॉर डी एंड एल जे इज फॉर यू. दिस मीन्स कि फ्रॉम माई कंट्रोल फ्लो आई वॉन्ट टू हैव ए पाथ वेयर एल आई द फर्स्ट node is defining and LJ the second node, I'm not saying last node, second node LJ is where v or a variable v is used. Example लेते हैं जी. Let v be set of variables that are associated with program artifact being modeled as graph. हमने एक छोटा सा ग्राफ ले लिया जी. Subset of v at each node, or for that matter at each edge e, defines def of n or def of e. Example, defs, देखिए हमारे पास defs हमने पहले भी किया. defs इसमें कहाँ कहाँ है जी? def at 1 which is x getting defined equal to 30. def at 5, def at 6 where z is getting defined and z is getting a value. Uses, use at 5, x is getting used at 5 and at 6. Now, if v is used in C use, computational use, the use is referred to as DCU from Li to Lj, and v is that variable. If v is used in predicate use or p use, the use is referred to as set of two def use pairs. अब यहां आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुई. पहले हमने कहा DCU कॉम्प्यूटेशनल यूज LI LJ, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी. DPU में LI LJ LT. मेरे पास LI तो जहां पे मैंने लेट से x को डिफाइन किया, LJ जहां पे x यूज हुआ, और ये चूंकि प्रेडिकेट यूज हो गया है तो इसका ट्रू पार्ट जो नोड LT वेयर इट इज यूज्ड फॉर द ट्रू पार्ट एंड v इज दैट वेरिएबल, एंड DPU LI LJ LF फॉल्स पार्ट. सो अगर मेरे पास एक इफ स्टेटमेंट है तो ट्रू वाला नोड DPU में पहले इसमें आ जाएगा, और दूसरा जो फॉल्स वाला नोड होगा वो LF में जाएगा. Since V is defined at Li, used at Lj, having two flow directions, LJ LT
that is the true side, and LJ/LF, that is the false side. Now def use pairs. अब हम आगे अपना जो ओरिजिनल डेफिनेशन, वी वांट टू डू व्हाट, हम पाथ्स निकालना चाह रहे हैं. एंड डेफ यूज पेयर इज सेट ऑफ नोड्स LI/LJ. LI/LJ बेसिकली पाथ्स को डिनोट करेगा. Def of a variable at Li and its use at Lj constitute a def use pair. Li and Lj can be the same. Okay. देखिए ये क्यों कहा कि def use can be the same. Imagine करें x is equal to x plus 2. Now I am at the same node. I am defining x and I am making computational use of x. So that is why I am saying Li could be equal to Lj. अगर ये situation हो तो a path from Li to Lj is def clear path with respect to variable v if v is not given any other value on any of the nodes or edges within the path. So हमने def clear, जो पहले हमने def use को explain किया या define किया, अब आ गया जी डेफ क्लियर. ओके, डेफ क्लियर पाथ फ्रॉम Li to Lj with respect to v means def of v at Li reaches use of v at Lj. So du path with respect to variable v is simple path, that is def clear from a def of v to use of v, where du paths are parameterized by v, the natural. They need to be simple paths. Simple path, by the way, हम explain करके जा चुके हैं. Complete path, simple path, elementary path. There may be intervening uses of paths. बिल्कुल हो सकता है आपका एक पाथ Li से शुरू हुआ, Lj पे गया, उसमें एक और नोड आई जो कि किसी और पाथ की टर्मिनल नोड थी. So there could be intervening paths. Path Ni/Nj, that is du path Ni/Nj, v is set of du paths from Ni to Nj for v, and du Ni/v is set of du paths starting from Ni for v. अब देखिए हमने क्या किया, du पाथ्स कर लिए, dcu पाथ कर लिए, dpu पाथ कर लिए और डेफ क्लियर पाथ कर लिए. अब हमें यह तो क्लियर हो गया कि हमें certain paths within our data flow graph which is built upon control flow graph are there and we want to analyze them. A def pair set du Ni/Nj v of du path with respect to v starts at Ni and ends at Nj. Clear? They represent set of all paths from definition to use, and this is what we want to analyze, and this is what we want to analyze with respect to the anomalies, single letter, double letter anomalies. With respect to them we want to evaluate. Now this gives rise to test requirement. Remember, टेस्ट कवरेज क्राइटेरिया के लिए हमें टेस्ट रिक्वायरमेंट पहले फिक्स की थी हमने, कंट्रोल फ्लो के लिए भी, इधर भी. TR, लेट्स से TR एग्जांपल है, ईच डेफ रीचेस एट लीस्ट वन यूज. एट लीस्ट, ईच डेफ रीचेस एट लीस्ट वन यूज. ओके, एक और TR लेते हैं जनाब, ईच डेफ रीचेस ऑल पॉसिबल यूजेस. ओके, TR, एक और TR लेते हैं जनाब, ईच डेफ रीचेस ऑल पॉसिबल यूजेस थ्रू ऑल पॉसिबल DU पाथ्स. तो हमने क्या किया, हम बना रहे हैं डिफरेंट कवरेज क्राइटेरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसके हिसाब से डिफरेंट टेस्ट रिक्वायरमेंट्स लिख के देख ली. एग्जाम्पल से हम आगे गए टेस्ट रिक्वायरमेंट्स की, तो अब हमने जनाब बनाया ऑल डेफ कवरेज. ऑल डेफ कवरेज मीन्स फॉर ईच डेफ पाथ set S, which is DUNV, the TR contains at least one path D in S. कहना हम ये चाह रहे हैं जनाब कि all defs कवरेज में हमने देखना है कि क्या def, every def किसी ना किसी यूज तक पहुंच रहा है, या किसी ना किसी यूज से किसी ना किसी def तक, या every def से किसी एटलीस्ट एक वन यूज तक हम जा रहे हैं. सो लेस नंबर ऑफ पाथ्स आएंगे. ये इसकी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे भी.
ऑल यूजेस फॉर ईच पेयर, पहले था जी फॉर ईच डेफ पेयर डेफ पाथ, अब है ईच डेफ पेयर सेट एस DUNINJV, वी वॉन्ट टू सी एवरी डेफ रीचेज एवरी यूज। हमने दूसरी TR जो टेक्स्ट रिक्वायरमेंट बनाई थी। तीसरा जी ऑल DU पाथ कवरेज फॉर ईच डेफ पेयर सेट S DUNINJV, we want to ensure that every def reaches every use through every possible DU path। अब आप नोटिस करें कि पहली बड़ी मुझे ये लग रही है कि एक सिंपल सी काइंड ऑफ कवरेज है, दूसरी कवरेज पहली से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और तीसरी पहली 2 से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सबसम्पशन का, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, सबसम्पशन इसमें नज़र आनी चाहिए हमें। एग्जाम्पल लेके देखते हैं जी। देखिए ऑल डेफ्स ऑफ एक्स टेस्ट पाथ, अब मैंने पहली ऑल डेफ्स ऑफ एक्स, अब मेरे पास x 30 है जी, एंड इट गेट्स फ्रॉम द कंट्रोल फ्लो गेट्स फ्रॉम नोड 1 टू नोड 7 वेयर नोड 7 इज द टर्मिनल नोड। टेस्ट पाथ क्या हमने लिया 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, एटलीस्ट एक यहां से डेफ चला सर और एटलीस्ट एक यूज तक पहुंच गया, दैट्स इट, सिंपल। अब हम गए थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कवरेज क्राइटेरिया की तरफ। ऑल यूजेस ऑफ एक्स टेस्ट पाथ्स 4 5 7 4 6 7, दिस मीन्स ये नोड भी मैंने ले ली। अब आप गौर कीजिए कि हमारे पास 1 2 4 6 7 भी आ गया। इससे थोड़ा बेहतर बना के देखते हैं ऑल DU पाथ ऑफ एक्स। अब देखिए 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4, ये रह गया था, ये देखिए इसमें कुछ भी हमने इस पर अभी तक टच नहीं, 1 3 4 भी आ गया, 5 के साथ आ गया, अब 1 2 1 3 6 के साथ आ गया। इन पे नोटिस करें आप, पहले हमने 1 2 3 किया, पहले 1 2 किया, फिर 1 3 किया और दोनों को 5 के साथ किया, फिर हमने 1 2 1 3 किया, दोनों को 6 के साथ करके देखा। दिस मीन्स कि नाउ दीज आर एवरी पॉसिबल डेफ और डिफाइन इज गेटिंग टू एवरी पॉसिबल यूज ऑफ एक्स थ्रू एवरी पॉसिबल मैनर। अगेन हमने ये देखा कि सबसम्पशन एग्जिस्ट करती है। सबसम्पशन कैसे एग्जिस्ट करती है, ये एक सबसम्पशन का हमने एक चार्ट बनाया जिसको हमने देखा कि अगर नोड्स होंगी, ऑल एजेस ऑल नोड्स को, ऑल नोड्स ऑल पी यूजेस को, ऑल पी यूजेस सम पी यूजेस को, ऑल डेफ्स को, और करते करते अगर ऑल पाथ लिए जाएंगे तो इन सब को सबस्यूम करेंगे। हमने अभी देखा कि एवरी यूज इज प्रिसीडेड बाय एवरी बाय ए डेफ, और हमने ये भी देखा कि एवरी डेफ रीचेज एटलीस्ट वन यूज। अगर हम थोड़ा सा अपने क्राइटेरिया को याद करें, जो क्या था, ऑल डेफ ऑल यूजेस एंड ऑल DU पाथ्स। तो ऑल DU पाथ में हमारे पास हर पाथ जो कि डेफ से गया, जो डिफाइन से गया, एवरी पॉसिबल वे से गया और हर यूज तक पहुंचा। हमने देखा कि फॉर एवरी नोड विद मल्टीपल आउटगोइंग एजेस एटलीस्ट वन वेरिएबल इज यूज्ड ऑन ईच आउट एज and the same variable are used on each out edge। So हमने इसमें सबसम्पशन देखी कि all defs is subsumed by all uses and all uses is subsumed by all DU paths। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखा जिसमें हमारे पास 1 फिर 2 और फिर 4 पाथ हुए, और हमने इसको ऑन ए काइंड ऑफ चार्ट भी देखा कि ऑल पाथ सबस्यूम्स ऑल यूजेस। अब ये देखिए, गौर कीजिएगा, मैंने पहले बोला ऑल डेफ इज सबस्यूम्ड बाय ऑल यूजेस एंड ऑल यूजेस इज सबस्यूम्ड बाय ऑल DU पाथ्स।